जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। So, hello everyone, and today we are going to have the discussion, a brief overview regarding the Registration Act. That why we need to register a document, what is the requirement of registration, what is the evidentiary value of registration, and what are the documents which required registration. Now, the Registration Act, and this is very old act. If I'm not wrong, 1900, if I'm not wrong, 1908. Now the question is, there's some question. First of all, what is meant by registration? First question. Second question, what or which form of documents required registration? Then which documents or what are the documents? What are the documents in which registration is optional? And fourth question, what is the evidentiary value of registration? What is the evidentiary value of a registry? These are the four questions which are very important, which will raise class. Now let's start. What is meant by registration? If we what is meant by registration? Registration simply means यहाँ पे where that document is being authenticated by the registrar as genuine. अगर मैं registration की simple layman में बात करूं, what is meant by registration? Where that document is authenticated by the registrar as genuine. That yes, this document is genuine document, true document, not false. This is what registration. Now the next question arose, why we required registration? Why we required registration? This question, why a person required registration of a document? Why a person required registration of a document? In order to make that document to be admissible in the court, which require compulsory registration. अगर कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में जहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट एज एन एविडेंस.
The court will not accept as an evidence. This is the reason we required some document to be get compulsory registered. So the answer is to make those documents to be admissible in the court, or not only court, or before the registrar or sub registrar, या तो रजिस्ट्रार के या सब रजिस्ट्रार के एज एन एविडेंस. दैट मींस हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है ये जेन्युइन है अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया है तो. दैट यस दिस डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन इफ यू हैव गॉट इट रजिस्टर्ड. यू हैव गॉट इट रजिस्टर्ड. अगर नहीं करा है देन द कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट. Then the court will not accept, or the registrar will not accept, or the sub registrar will not accept. अगर उसमें compulsory registration है तो. Now the next question. इसी के साथ next question क्या है? What are the documents which require compulsory registration? यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल. At what are the documents which require compulsory registry? Compulsory registry. And the answer to this is section 7. Section 17 में इसका आंसर, क्योंकि section 17 is one of the most important in this registration act. It talks about that what are the documents which require compulsory registration. कुछ अगर इसकी क्लॉजेस की बात करो रिगार्डिंग सेक्शन 17, फर्स्ट है सेल. इन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेल डीड मूवेबल की बात नहीं कर रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की. इट टॉक्स अबाउट सेल डीड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो आप सेल डीड के थ्रू कर रहे हो उसको आपको रजिस्टर कराना है. whose value is 100 rupees और मोर. मतलब अगर कोई भी जो कि होगी ऑब्वियसली कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपीज ज्यादा की है, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, तो वो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अदरवाइज अगर नहीं कराया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है इस पे कि अगर आपने किसी को भी नॉर्मल सेल डीड से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उससे पैसा ले लिया, तो अभी भी वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं माना जाएगा टिल द टाइम यू हैड मेड दैट डॉक्यूमेंट एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. देयरफॉर यू हैव टू मेड इट रजिस्टर्ड. एंड द mandate is, the compulsory requirement is that property should be immovable property and 100 rupees or more. If this is so, in that case you have to get it registered in his name, and he has the duty to get it registered in his own name. Apart from that, if he did not, if he had not done so, तो in that case even though उसने आपको पैसा दे दिया, अभी भी उस प्रॉपर्टी के मालिक ओनर आप ही हो, because that property has not been registered. की बात कर रहा है सेक्शन 17. और किसकी बात कर रहा है? एक तो हमने सेल डीड की बात कर ली, सेकंड बात कर रहा है आपका, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा है आपका अर्नेस्ट मनी की. अर्नेस्ट मनी, ये अर्नेस्ट मनी क्या होता है? ये बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ अर्नेस्ट मनी. रजिस्ट्रेशन ऑफ अर्नेस्ट मनी. अर्नेस्ट मनी होता क्या है? देखो
जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी जब लेने या देखने जाते हो तो आप उस प्रॉपर्टी को बुक करा देते हो कि नाउ इस प्रॉपर्टी को मैंने बुक करा दिया है, अब आप इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को और किसी या फोर्थ पर्सन या किसी और पर्सन को बेचना मत, क्योंकि आज से 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद ये प्रॉपर्टी मैं ही आपसे परचेज। और अगर आपने उस पर्सन, वो पर्सन भी कहेगा ना जो ओनर है कि सर मुझे क्या भरोसा कि आप इस प्रॉपर्टी को 2 महीने 3 महीने बाद लोगे ही मुझसे, फिर आप ये बोलोगे कि आप लोगे भी नहीं और फिर क्या पता ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं ये भी नहीं आए बाद में, तो आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक 10% अमाउंट दे देता हूं इसका। 10% इसको हिंदी में ब्याना कहते हैं। आपने उसको अर्नेस्ट मनी पे कर दिया। अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपीज की है तो आपने 10 लाख रुपीज दे दिए उस पर्सन को कि ठीक है अब इस प्रॉपर्टी को बेचना मत, और 2 या 3 महीने बाद इस प्रॉपर्टी को आपसे मैं ही खरीदूंगा। तो आपने क्या करा? उसको 10% अमाउंट दे दिया। तो अर्नेस्ट मनी यूजुअली कितना होता है? 10% होता है। 10% होता है। आपने उसको 10% पे कर दिया। उसने क्या करा? 10% लेने के बाद वो बोल दिया कि हाँ ठीक है 2 महीने बाद ये प्रॉपर्टी मैं आप ही के नाम पे ट्रांसफर करूंगा। इसी को बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ अर्नेस्ट मनी इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है किसका? अर्नेस्ट मनी का भी। आपने जो उसको पैसा दिया है ना, क्या प्रूफ है कि आपने उसको 10% दिया है? देखो एक तो हो गया कि आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो अकाउंट की ट्रांजैक्शंस तो बैंक से निकल जाएंगी, बट अगर आपने उसको कैश पे करा है देन व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव गिवन हिम द अर्नेस्ट मनी इन ऑर्डर टू रिजर्व दैट प्रॉपर्टी। इसीलिए लॉ कह रहा है दैट यू हैव टू मेड दैट अर्नेस्ट मनी विच यू हैव गिवन रजिस्टर्ड, कि हाँ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जाओगे कि इस प्रॉपर्टी का अर्नेस्ट मनी मैंने दे दिया है, इसको रजिस्टर करें कि हाँ ये प्रॉपर्टी इन फ्यूचर आप ही को बेचा जाए, बिकॉज नाउ ही हैज रिसीव्ड द अर्नेस्ट मनी एंड ही हैज रिजर्व्ड द प्रॉपर्टी टू सेल इन फ्यूचर दैट प्रॉपर्टी इन योर फेवर, इन योर फेवर, व्हाट कॉल्ड एज अर्नेस्ट मनी। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो आपका सेक्शन 17 बात करता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जहां पे अगर आप क्या कर रहे हो? लीज, किराए पे दे रहे हो कोई प्रॉपर्टी, लीज, लेकिन लीज टाइम पीरियड के की करानी पड़ेगी तभी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट इज मोर देन 1 ईयर की जब लीज होगी तभी उसको रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। कंपलसरी और मैंडेटरी होगा। दैट मींस लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर or from any term exceeding 1 year और for any term exceeding 1 year, 1 साल से ज्यादा अगर ऐसा है तो आपको लीज भी रजिस्टर करानी पड़ेगी। लीज भी रजिस्टर करानी, आपको सेल डीड रजिस्टर करानी है, आपको अर्नेस्ट मनी रजिस्टर कराना है, आपको लीज जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है वो भी रजिस्टर करानी पड़ेगी। ये हो गया सेक्शन 17, मोटा मोटा सेक्शन 17 बात। अब अगर इससे हम लोग आगे चले तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या? इन विच केसेस द registration of a document is optional। जहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब देखिए ये बात कहां कर रहा है? सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में तो सिंपली इतनी बात कर रहा है जहां पे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 100 रुपीज। वैसे तो आज के टाइम में
आई डोंट थिंक ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम होगी। अगर है कहीं कहीं किसी जगह पे तो उसको आपको रजिस्टर नहीं कराना है अगर आप ट्रांसफर कर वैल्यू 100। सिंपल। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कार, टू व्हीलर, कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी, आप कोई एरोप्लेन भी ट्रांसफर कर रहे हो किसी के नाम पे, उसमें भी रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, बिकॉज इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू। आपको बता रहा हूं, जहां पे अब पहले बताया सेक्शन 17 में जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अब यहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू। सेकेंड, अब और कहां का मैंडेटरी नहीं है? गिफ्ट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी where the value is less than 100 रुपीज। अगर कोई भी गिफ्ट कर रहे हो जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो उसमें रजिस्ट्रेशन। और इसका ही जस्ट अपोजिट, ये तो सेक्शन 18 में आ गया। इफ वैल्यू इज 100 रुपीज और मोर इन गिफ्ट ऑफ पेबल और पेबल property, then registration is compulsory। सिंपल, कंपल्सरी। ये का मत कर सेक्शन 17। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से कम है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, और 100 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इररेस्पेक्टिव मूवेबल है या इमूवेबल है, इररेस्पेक्टिव। अब लास्ट पॉइंट, बिल का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहां लिखा है? सेक्शन 18 में। विल को भी रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, लेकिन विल को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बात करता है, मैंडेटरी नहीं है, बट इट शुड बी अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कराना चाहिए जो हम लोग रजिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एक्ट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कराने चाहिए, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे रजिस्ट्रेशन के, नॉन रजिस्ट्रेशन के, एंड व्हाट इज मेंट बाय रजिस्ट्रेशन। दिस what we have discussed in this brief introduction of this registration act. Okay, thank you very much. Subscribe for more content.